अनुच्छेद 153 आईपीसी के तहत एफआईआर, जिसे धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने से संबंधित अपराध माना जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 196(1) के अनुसार कोई भी कोर्ट अनुच्छेद 153 आईपीसी के तहत अपराध की सुनवाई सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और जांच, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन मुकदमा, ट्रायल सरकार की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यदि एफआईआर दर्ज करने के समय सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई है, तो इसे अनुच्छेद 226 संविधान या धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में रद्द, क्वैश कराने का आधार नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर पुलिस चार्जशीट, आरोप पत्र फाइल कर देती है और कोर्ट बिना आवश्यक स्वीकृति के केस को आगे बढ़ाता है, तो अभियुक्त एक्यूज्ड हाई कोर्ट में इस पर आपत्ति कर सकता है और इसे धारा 196 सीआरपीसी के अनुपालन न होने के आधार पर रद्द, क्वैश करा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर बुधिकोटा सुब्बाराव 1993 जैसे मामलों में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, लेकिन अभियोजन, प्रोसिक्यूशन से पहले यह अनिवार्य है। इसलिए अनुच्छेद 153 आईपीसी के तहत एफआईआर केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई, लेकिन यदि सरकार की स्वीकृति के बिना मुकदमा, ट्रायल आगे बढ़ता है, तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देकर रद्द, क्वैश कराया जा सकता है। An FIR under Section 153 IPC, which deals with promoting enmity between different groups based on religion, race, or language, does not require prior government sanction for registration or investigation. However, as per Section 196(1) of the CRPC, no court can take cognizance of an offence under Section 153A IPC without the prior sanction of the central or state government. This means that while the police can register an FIR and conduct an investigation, the case cannot proceed to trial without government approval. The absence of sanction at the FIR stage is not a valid ground for quashing the FIR in the High Court under Article 226 of the Constitution or Section 482 CRPC. However, if the police file a charge sheet and the court proceeds without obtaining sanction, the accused can challenge the proceedings in the High Court and get them quashed for non-compliance with Section 196 CRPC. Courts have upheld this principle in cases like Subramanian Swamy v. Union of India, 2016, and State of Maharashtra v. Dr. Budhikota Subbarao, 1993, where it was clarified that sanction is a prerequisite for prosecution but not for investigation. Therefore, while an FIR under Section 153A IPC cannot be nullified solely for lack of sanction, any subsequent trial without sanction can be challenged and quashed. Under Section 153 IPC, promoting enmity between different groups based on religion, race, place of birth, or language is a punishable offence. However, as per Section 196(1) CRPC, no court can take cognizance of an offence under Section 153A IPC without prior sanction from the central or state government. This means that while police can register an FIR and investigate, the trial cannot proceed without government approval. In cases where 153A IPC is wrongly applied without proper legal grounds, the accused can approach the High Court under Article 226 of the Constitution or Section 482 CRPC to seek its removal from the FIR. Courts have upheld this principle in cases like Subramanian Swamy v. Union of India, 2016, and State of Maharashtra v. Dr. Budhikota Subbarao,
1993, emphasizing that prior sanction is mandatory for prosecution but not for investigation. Therefore, if Section 153A IPC is added unjustifiably, an accused person can request the High Court to quash this section while allowing the rest of the case to proceed under other applicable sections. अनुच्छेद 153 आईपीसी के तहत धर्म, जाति, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर वैमनस्य एनमिटी बढ़ाने को दंडनीय अपराध माना गया है। लेकिन धारा 196(1) सीआरपीसी के अनुसार कोई भी कोर्ट अनुच्छेद 153 आईपीसी के तहत मुकदमे की सुनवाई कॉग्निजेंस सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रायर सैंक्शन के बिना नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन ट्रायल सरकार की स्वीकृति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यदि 153 आईपीसी को गलत तरीके से बिना किसी कानूनी आधार के जोड़ा गया है, तो अभियुक्त अनुच्छेद 226 संविधान या धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे एफआईआर से हटवाने रिमूवल की मांग कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर बुधिकोटा सुब्बाराव 1993 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 153 आईपीसी के तहत अभियोजन प्रोसिक्यूशन से पहले सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक नहीं। इसलिए यदि 153 आईपीसी को अनुचित रूप से एफआईआर में जोड़ा गया है, तो अभियुक्त हाई कोर्ट से अनुरोध कर सकता है कि इस धारा को हटाया जाए, जबकि एफआईआर में मौजूद अन्य धाराओं के तहत मामला सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता है।